Okay. A great. Just 1 minute, Nadira. Okay, yes, ma'am. Uh, Let me tell Yes, you, ma'am. Principal Madam and Girish ji, you're one of the batchmates. Junaid is joined. Just now I saw him. I have shared this session's detail on the group, so Junaid is also joined the session. Welcome, Junaid. Oh, he is one of my besties. He will Uh, join. that is why he is joined. Good, good. We are getting connected to the all the alumni. Fine. Continue, Nazir. Yes, ma'am. A great morning to our respected principal, Dr. Sudha Rathod, ma'am, our shining alumni and speaker for the day, Mr. Kumar Trivedi, coordinator, Dr. Vandana Jain, organizing committee, Dr. Amjad Ali, Dr. Mahendra Prajapati, Mr. Suraj Gupta, Mrs. Piyusha Patel, teachers, and all the students present over here. Our today's webinar is on guidance for entrepreneurship. It is rightly said that opportunities don't happen, you create them. Proceeding further, I would like to invite our respected principal, Dr. Sudha Rathod ma'am, to address the gathering. Over to you, ma'am. Very good morning to all of you. Special thanks to Mr. Girish Kumar Trivedi, who is also the alumni of our college, who has easily accepted our invitation. So happy to have you here. Yes, My our pleasure, ma'am. placement cell is doing a lot, and from the last year, lot of activities have been included, which comprises of making biodata collection of all alumni right from 2008 BPharm and NPharm. So this is a very big work done by our placement cell. Secondly, it is like alumni meet online year wise. So year-wise alumni meet gives you the very active kind of alumni and their posts, etc. And now we have started making the list of alumni who can deliver the lectures, who can give the training positions to our students, who can give the placements, and who can give the guidance to the college. So this way, different lists have been made. uh, Third and important thing is we are now thinking of having an alumni meet in a conference hall somewhere out with lunch or dinner party. So one to one interaction. So this way things are moving ahead. We are also now thinking of making sales for those students who are abroad, maybe like US alumni sale, UK alumni sale, and other. So this is the second coming next step which we have to undertake. Similarly, calling alumni to deliver lectures on, say, entrepreneurship or career guidance. We have just last week, I think so, we have called our seniors to interact with juniors about the higher education. So these things are very much required, and we are now following things. We have made many MOUs also from this year, so that none of our third year student will go without training, physical training, so which will reflect in their placement. So these are the things which are being taken by Dr. Vandana, Mr. Suraj, and so many others. Even now, Amjad sir has become very active. We were talking to them like go to the industries, meet industry people, have interaction with them. But things took long time to come in the action. But now, yes, it is there. And we have got around 15 plus MOUs with industries as far as consultancy projects and students training is concerned, and things are still in the process. Okay, so with this background of our alumni, now I will welcome Girish Kumar Trivedi to speak something about his entrepreneurship, and let our students, alumni, to take some steps from him and go ahead in the entrepreneurship. Thank you. Thank you, ma'am. It's a pleasure for me. It's a great honor for me
for to present you my session to you. I want to know how many students are there, matlab, exactly how many students are there who are matlab, who are actually wants to hear this session. Vandana ma'am, can you please let me know how many 54 students are are there, sir, Abhi. Girish ji, 54 of us are there in the meeting. 54. 4 participants. Okay, okay, okay. Mhm. First of all, I would like to thank Vandana ma'am who constantly was in touch with me, and who the one who So, convinced me to give this session. She was constantly in touch with me, and I think the students right now in third year and fourth year are of they are very lucky that they are getting this such kind of sessions. You should thank to your principal ma'am, Vandana ma'am, because in our time there were nothing like this. We were just open to do what we want to do, what we were not knowing what to do, how to go ahead. मतलब वो टाइम पे हमारा दिमाग इतना लिमिटेड था that there were nobody to teach us कि what should we do in our further life. So you should thank to your teacher, your principal ma'am, that they are taking their efforts to bring us together, to bring these alumni together and मतलब, to guide you, because we had some experience after college, so we can share this experience to you, right? So you are grateful students that you have got such a good faculties with you. That's a great thing, I think. So Vandana ma'am, can we start with the session now? Yes, yes, Girish ji. Kushi and Nazrin, over to you. You Okay. can invite formal invitation to Girish ji for speaking. yes, yes. Thank you, sir and ma'am, for your incredible words. Over to you, Nazreen. Yes. Now I would like to introduce our speaker for the day, Mr. Girish Kumar Trivedi, sir. Sir is an alumni of Oriental College of Pharmacy and has done MBA from Chetna's Institute of Management and Research. Sir was a marketing executive at Biocon Ltd API in 2012 to 2014. In 2014, Sir joined his family business of retail medical chain and opened multiple medical stores in the name of Ranjan Medical Stores. Sir is a founder and managing director at Ranjan Healthcare Braison, which was inaugurated in 2018. Over to you, sir. Thank you, Nazreen. Let's start the presentation, I suppose, because the content is very good actually, and बहुत research करके I have got this content. This content is of my experience as well as some theoretical, some practical. So it will really help you to मतलब, those who are a entrepreneur, those who want to become an entrepreneur. That's called they are called entrepreneur. So you all guys are entrepreneur. You want to become an entrepreneur. So my topic, so my today's session's topic is from entrepreneur to entrepreneur. Mr. Tushar is also joined with us. I think he is also from your batch. Am I right? Tushar Bhosle. I just saw someone. Tushar Manjari.
So can you see the screen? Yes, it's on screen. But it's a blank slide as of now, but yes, it's there on screen. Sir, if required, please guide for screen sharing. I think this is the entire screen you are sharing. So you can either share a window, or even if you share your entire screen, you can start with the presentation. It is visible. Is my screen आ रहा है? Presentation आ रहा है उस पे? Yeah, your screen is visible, sir. You can start with the presentation. सूरज सर Yes, ma'am. हाँ थोड़ा गाइड करना हाँ, कुछ yes, ma'am. प्रॉब्लम आवे तो फोन करके बता दीजिए कुछ उनको Perfect. On screen. Visible, sir. Sir, you're on mute. Yeah. So can you see the screen now? yes Yes, yes sir. Visible. So let's start the session. Am I audible?
Yes, sir, Yes, you sir. Yes, are. yes. And my screen, you can see the screen. Yes. Yes, sir. Okay, let's start from the topic of my session is from entrepreneur to entrepreneur. As I told you that you students are not an entrepreneur now. You want to be an entrepreneur, so you are told entrepreneur. I don't know how many students wants to become an entrepreneur. There are few students who maybe want to become an entrepreneur, and there might be few students who wants to go for a job, a routine job, then uh, go abroad and do some work. On it's different. Entrepreneurship is always a different thing from a job. So, what's the actual definition of entrepreneur? One who creates new business in the face of risk and uncertainty for the purpose of achieving profit and growth by identifying and assembling the necessary resources to capitalize on them. So this is the best quote from Neil Armstrong. In entrepreneurship, it's not only gaining your profit, it's also to give something to mankind. It's like corporate social responsibilities. In entrepreneurship, you have to think of your society as well. So the best quote from Neil Armstrong is your best quote that reflects your approach. It's the one step for man and a giant step for mankind. Means we have to have a giant step for mankind. Not only for you, you have to do a giant step for mankind as well. So this is also a learning in entrepreneur as well, that you have to uh, think of mankind as well. My journey, as it's been very well explained by one of my one of the student. I passed my B Farm in 2010 from Oriental College of Pharmacy. I completed my MBA from Chetnas Institute of Management Research in 2012. Then from Chetnas campus, I got and Biocon came to the campus, wherein I got hired to Biocon, and I joined Biocon in 2012. In Biocon, I was given API market, active pharmaceutical ingredient. I am audible. Am I Yes, sir. audible? Yes, sir. Okay. In Biocon, I was given API market. API, you must be knowing, active pharmaceutical ingredient, the bulk drug, wherein I used to serve India West market, like Madhya Pradesh, Gujarat, Goa, Maharashtra. This was the market I used to serve, wherein I used to go to the companies like Torrent, Intas, Zydus, and my profile was to meet the owners and the directors of the company. That was a great thing for me, a great learning for me to become an entrepreneur. It was a start, it was an ignition for me to become an entrepreneur, wherein I used to meet the owners and directors over there. So I joined Biocon in 2012, and I resigned in 2014 because there was some family issues, and I also want to get into business. In the meantime, I was the best performer, awarded as a best performer for the quarter by Biocon's vice president. So it was a great achievement for me. When I was doing job as well, I was a great achiever at that time. In college time also, I was Amjad sir must be knowing very well. I was general secretary of the college. So in college days also, I have done lots of things for college as well. So when I was in my company, I did lots of things for my company, and now I have started my business. So I am doing lots of things for my business. Why I opt for pharma and why I opt for business? Okay, um, uh, everybody has different stories why they opt for pharma, or why they opt for job, or why they opt for business. But why I opt for pharma is I had a traditional business. My family business was in pharma. Since 30 years, we are in pharma industry. So it was obvious for me to join pharma. So I did my B Pharmacy from Oriental College. Then I did my job, and in the meanwhile, while I was doing my job, uh, there was something
behind my there was something in my mind that I have to do business. I have to do business. So luckily, I got a profile wherein I used to meet the owners of the company. Owners of the company means the owners of Torrent, Mr. Modi, owners of Intas, owners of Zydus. So wherein I got ignition to do business. So finally, I opt for business. Ki I want to do business. I want to become an entrepreneur. That's what I thought, and that's what my journey starts from there. So, why one should opt for business? It would be comfortable for Hindi. Can I speak Hindi? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yeah, Girish. it will be comfortable for both, for student as well, for me as well. It's okay. So, why one should opt for a business? In business, you become a decision maker. Okay, you are your own decision maker. You have lots of responsibilities in you. So it's upon you what decision you have to make. Okay, the the one who take risk. The business is for one who take risk. Okay, you get confidence and ability to succeed. Why one should opt for a business? The one who has ability to confidence and ability to succeed, they go for business. They go for entrepreneurship. The one who have high level of energy and skilled at organizing. Of course, you should have high level of energy in job, but when you're doing your business, you should have immense level of energy. It's not like कि business है तो 10 दिन आराम 20 दिन काम. It's not like that. You should have immense level of energy and skill set at organizing. You have to organize everything. You are not a salesman. You become a businessman over there. You have to organize. Okay. Then if somebody wants to become your own boss in business, you are your own boss. No boss on you. So for me, I opt for business for that only because I want to become my own boss. Second, next, desire for responsibility. The one who desire for responsibility. Not everybody desires for responsibility. There are few people only who desires for responsibility to take the responsibility. In company as well, there are 5% of the people who desires for responsibility to take the responsibility and do work and deliver to the company, and rest they do not take responsibility. They go like chal raha hai, chal raha hai, chal raha hai. It's not like that. The one who desire for responsibility, they should go for business. एक वैल्यू ऑफ अचीवमेंट मिलता है when you do business. Value of achievement over money, मतलब it's money is not everything. You get an achievement. हाँ, मैंने कुछ किया, मेरे इसमें कुछ किया मैंने, ऐसा कुछ लगता है हम लोगों की it's an achievement for me, not money. Not for money. Your business is not for money. It's a self satisfaction. हाँ, future orientation. Future में if you start your business from now, then your children have this business to go ahead, to take this business ahead. So future orientations, then entire profit is yours. जो भी कमाया सब अपना ही है. इन बिजनेस, जॉब में तुम लोग कमा के दे रहे हो दूसरे को, बट इन बिजनेस जो भी कमाया वो अपना. यू हैव टू शेयर योर प्रॉफिट टू एम्प्लॉयज, बट जो भी कमाया वो अपना है. एंटायर प्रॉफिट इज योर्स. This is theoretical process of entrepreneurship. You discover some concept कि मैं ये करूँगा, मैं ये, you think in your mind कि मैं ये करूँगा. Okay, then you think in your mind, then you start concept developing. You develop the concept कि मेरा concept कैसा होना चाहिए. Like ओला, उसने पहले सोचा कि मैंने I should start a driver based company. So first you discover, then the concept is developed, then you start resourcing. गाड़ी लाना, human resource लाना, पैसा लाना. Then you start resourcing. Then you do actualization. तो सबको जमा करना, सबको ऑर्गेनाइज करके बिजनेस स्टार्ट करना. दोस्तों बाद में जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, देन यू हार्वेस्ट इट. ये थेरेटिकल पार्ट है. बट फॉर मी, तो मैंने रिसर्च किया, इट इज लाइक दिस स्टेप फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. पहले यू डू योर जॉब. आप
कॉलेज से पास आउट हुए, फर्स्ट स्टार्टिंग में आप बिजनेस नहीं करेंगे, यू फर्स्ट गो फॉर जॉब, यू विल डू जॉब लाइक आई डिड. ओके, you do job for let's say 1 to 2 year. Am I audible? Yes, Guys? sir. Yes, sir. Yeah. So when you think of entrepreneurship, suddenly you don't get into entrepreneurship. You complete your studies, then you do some job. Okay, while doing some job, you think of doing an business. कि मैं कुछ business करना चाहता हूँ. So how do you start? First you will do freelancing because तुम job छोड़ नहीं सकते हो, right? तुम job छोड़ नहीं सकते हो. You have some liabilities with you. तुम job नहीं छोड़ सकते हो. So you start with your freelancing. Okay. Then when the freelancing, you get the confidence from freelancing. You slowly do a startup. Startup, you get the fund. You get the resources. You get people around you, and you do the startup. This is my process of entrepreneurship. Huh? Freelancing, then you do the startup, then you scale up your startup. Startup को start किया, start करना is not the business. You have to scale up your startup, and then you become, after your startup is successful, then you become an entrepreneur. Here you become an entrepreneur. जो आप बोल रहे थे ना entrepreneurship, it's not entrepreneurship. You are entrepreneur. You are becoming an entrepreneur. So this is the step of becoming an entrepreneur. First you freelance it, then you start up, then you scale up your startup, and finally, when everything is harvested, you become an entrepreneur. Okay? अभी जो भी फॉर द स्टूडेंट्स, जो भी ये रेड में लिखा है ना, मैंने जानबूझ के हिंदी में लिखा है. जो भी ये हिंदी में प्रोवर्ब्स आ रहे हैं ना, आई वांट यू स्टूडेंट्स टू रीड इट लाउडली. So how to start a startup? All are giving attention over here? Yes, sir. Students, all are giving attention over here? Yes, sir. So read. जो देगा यहाँ attention, उसका दूर हो जाएगा टेंशन. Definitely. जो आज के वेबिनार में देगा attention, उसका दूर हो जाएगा टेंशन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, अबाउट बिजनेस, हाउ टू डू योर बिजनेस. ओके, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए you should have a big dream, a big mindset. So ये जो मैंने लाल अक्षरों में लिखा है ना, ये सब लोग पढ़ेंगे और बोलेंगे मुझे जोर से. Come on guys. छोटी सोच आपको आगे नहीं बढ़ने देगी. वेरी नाइस. छोटी सोच और पाव की मोच आपको आगे बढ़ने नहीं देगी. आपको बड़ा सोचना है. इफ यू वांट टू डू बिजनेस, छोटा नहीं, बड़ा. थिंक बिग, ड्रीम बिग. छोटी सोच रखेंगे, यू विल गो समवेयर एंड फॉल डाउन. छोटी सोच और पाव की मोच आपको आगे बढ़ने नहीं देगी. टेक दिस वर्ड, यू गाइज, टेक आउट योर बुक, टेक आउट योर पेन, ये सब लिखो आप. डेफिनेटली ये सब आप लिखेंगे, यू कीप इन योर माइंड, देन ओनली यू कैन स्केल इन योर बिजनेस. सो एज आई टोल्ड यू कि मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इज यू स्टार्ट विथ फ्रीलांसिंग फर्स्ट, राइट? बिकॉज यू कंप्लीट योर स्टडीज, देन यू गो फॉर जॉब. जॉब के साथ बिजनेस करना डिफिकल्ट है क्योंकि घर पे पैसे देने पड़ते हैं. I am talking about reality. ठीक है, your parents have invested in you. You have to return something to your parents, to your family, जो invest किया था आपके ऊपर, जो fees आपके ऊपर लगी है. So you cannot start your business directly. You have to do some job. Okay, while doing your job, you get an experience as well. So it's not like कि studies होते ही तुम लोग business start कर दो. Do some job. टेक सम एक्सपीरियंस. जो पैसा आपका लगा था स्टडीज में, वो पैसा आपके पेरेंट्स को आप रिटर्न दो. इन द मीन वाइल यू टेक द एक्सपीरियंस इन वाइल डूइंग द जॉब. ओके, देन स्लोली यू थिंक व्हेनेवर यू हैव, मतलब जिसकी भी बड़ी सोच है या बिग ड्रीम है, ओके, दे स्टार्ट विथ फ्रीलांसिंग.
कि मैं जॉब भी करूँ और फ्रीलांस भी करूँ. Okay, now come to a topic like freelancing. Before freelancing, you should know why you want to do freelancing. For that, identify your goals. एकदम क्लियर हो जाओ आपके गोल्स के बारे में कि मुझे फ्रीलांसिंग क्यों करना है, क्या मुझे करना है या नहीं करना है. ओके, सो आइडेंटिफाई योर गोल्स. एकदम गोल में आप आपके लक्ष्य में एकदम आप कि आपको बिजनेस करना ही है. सो स्टूडेंट्स, वापस से ये रेड कलर का जो मैंने लिखा है हिंदी में उसको आप पढ़ो. Students, come on. You want to become a businessman. You have to speak. Unmute yourself and speak out. चलो मैं ही बोलती हूँ, प्रिंसिपल बोलती है, जो अपने लक्ष्य में खो गया समझ लो वही व्यक्ति सफल हो गया. Yes. Nice quote. Nice quote. जो अपने लक्ष्य में खो गया समझ लो वही व्यक्ति सफल हो गया. तुम लोग अगर तुमको बिजनेस करना ही है, आपके लक्ष्य में खो जाओ. जो अपने लक्ष्य में खो गया समझ लो वही व्यक्ति सफल हो गया. इट्स अ गोल्डन स्टेटमेंट. राइट इट डाउन स्टूडेंट्स. आपको लक्ष्य में खो जाना है अगर आपको सफल होना है. जो अपने लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया. ओके, फ्रीलांसिंग. whenever you start your freelancing, you have to introspect why you want to do freelancing. Okay, why you want to do freelancing? For work life satisfaction. आपको फ्रीलांसिंग क्यों करना है? उससे आपको वर्क लाइफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फ्लेक्सिबल शेड्यूल मिलेगा. क्या फ्रीलांसिंग से आपको एडिशनल इनकम मिल रहा है? क्यों फ्रीलांसिंग करना है? क्या आप उससे आपको क्या मोर टाइम टू योर फैमिली, आप आपके फैमिली को ज़्यादा टाइम दे सकते हो फ्रीलांसिंग करने से. ओके, फ्रीलांसिंग क्यों करना है आपको ये बताया, ये स्लाइड में बता रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्ट व्हाई यू वांट टू डू फ्रीलांसिंग. कि आपको आपकी फैमिली को ज़्यादा टाइम देना है या ज़्यादा टाइम देके मतलब एडिशनल इनकम करना है, क्या करना है आपको, फ्रीलांसिंग क्यों करना है. सो अगर किसी के माइंड सेट में ये है ना कि बिजनेस 10 दिन काम 20 दिन आराम, बिजनेस है अपना है, कर लेंगे हो जाएगा, और इट्स नॉट लाइक दैट. ये आपके माइंड सेट से निकाल दो आप लोग. 10 दिन काम 20 दिन आराम इज नॉट बिजनेस. You do suppose while you're working in job, while you're working you do, महीने में आप 20 दिन काम करते हो, 26 दिन काम करते हो, 4 दिन छुट्टी होती है संडे की. स्टूडेंट्स, Yes. Yes, sir. राइट, आपको छुट्टी होती है. इन बिजनेस देयर इज नथिंग कॉल्ड छुट्टी. इट्स नथिंग कॉल्ड छुट्टी बॉस. फुल डे, पूरा एनर्जी, पूरा आपका फोकस. छुट्टी आपके एम्प्लॉय को होगी, आपको नहीं होगी. ओके, सो जो ये सोच रहा है कि 10 दिन आराम 20 दिन काम, 10 दिन काम 20 दिन आराम, चेंज योर माइंडसेट. चेंज योर माइंडसेट टुवर्ड्स बिजनेस. ये माइंडसेट से आप बिजनेस कर रहे हो, आगे जाना चाहते हो तो मत जाना प्लीज. पूरा मेहनत से काम करना है, आपके लक्ष्य में खो जाना है तो ये आप बिजनेस करना है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. व्हाई यू वांट टू डू फ्रीलांसिंग? बिफोर फ्रीलांसिंग यू थिंक कि व्हाट इज योर ड्रीम, अभी एक्चुअल रियलिटी क्या है वो मैच करके देखो आप लोग. फ्रीलांसिंग करने के पहले ऐसा हो सकता है क्या? जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, वट एवर बिजनेस यू वांट थिंकिंग अबाउट, मतलब वट एवर बिजनेस यू आर थिंकिंग अबाउट इज योर ड्रीम, राइट? सो इज योर ड्रीम एंड योर एक्चुअल रियलिटी, एक्चुअल एक्शन, तो आप कंबाइन करके देखो कि ये आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. जैसे कि आपका ड्रीम है सॉफ्टवेयर डेवलप करना, और रियलिटी में उसका नीड ही नहीं है, उसका नीड नहीं है वो सॉफ्टवेयर का. अगर वो सॉफ्टवेयर आप लेके आ रहे हो तो मार्केट में वो नहीं चलेगा. सो एक्सेस योर एस्पिरेशन. आपका जो ड्रीम, बहुत सारा ड्रीम है ना, उसको आप रियलिटी से मैच करके देखो कि ये जो आप
फ्रीलांसिंग का सॉफ्टवेयर लेके आएंगे, ये चलेगा या नहीं चलेगा। दूसरा, आप फ्रीलांसिंग क्यों करना चाहते हो? क्या आपको कंपनी से निकाला गया है? क्या आप निकल चुके हैं? क्या आप घर से निकल चुके हैं बिजनेस करने के लिए? बहुत लोग होते हैं ना, रन अवे फ्रॉम होम, मुझे कुछ करके दिखाना है, राइट? तो ऐसा नहीं होता है। टेक सम टाइम, टेक सम टाइम टू सॉर्ट आउट योर माइंडसेट। देखो, बिजनेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। पूरा माइंड को आप एकदम काम करके सोचो कि आपको क्या करना है। आपको बिजनेस करना है तो करना है, देन गो अहेड। फिर जॉब, फिर लाइबिलिटी, फिर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सब कुछ भूल जाओ। स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल है, स्ट्रगल करो, लेकिन स्ट्रगल करने के पहले अच्छे से सोच लो कि आपको बिजनेस क्यों करना है, व्हाई यू वांट टू डू फ्रीलांसिंग। सो स्टूडेंट्स, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. हाँ, माइंडसेट को सॉर्ट आउट कर लो, व्हाई यू वांट टू डू बिजनेस। टेक सम टाइम बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस, टेक सम टाइम, सोचो अच्छे से कि मैं बिजनेस करना। फ्रीलांसिंग के टाइम पे ही आपको सोचना होगा कि मैं आगे जाऊं या मैं अपने जॉब से ही कंटिन्यू करूं, बिकॉज आगे आगे चले गए तो वापस पीछे नहीं आ सकते। सो टेक सम टाइम टू थिंक कि मैं जॉब में ही रहूं, मैं जॉब में ही ग्रो करूं। मेरे ईएमआई है, मेरे पास मेरे पेरेंट्स को मैंने एजुकेशन लोन लिया था, वो मुझे देना है। तो मैं क्या करूं, मैं बिजनेस में जाऊं कि नहीं जाऊं? बिजनेस में जाऊंगा तो ये ब्रेक इवन आने को टाइम लगेगा। तो मेरा जॉब पैसे, क्या मेरे पास पैसे है वो ब्रेक इवन आने के टाइम आने तक मैं क्या सर्वाइव कर सकता हूँ? टेक योर टाइम, आराम से सोच के माइंडसेट बनाओ कि आपको बिजनेस करना है या नहीं करना है। अगर करना है देन लेट्स गो अहेड। अगर बिजनेस करना है, फिगर आउट योर की स्ट्रेंथ। जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो, फिगर आउट योर की स्ट्रेंथ। व्हाट इज योर की स्ट्रेंथ? ओके, हाउ शार्प योर की स्ट्रेंथ इज। आपका की स्ट्रेंथ को बहुत, आपका जो स्किल्स है ना, हाउ शार्प इज आर योर स्किल्स। जो भी स्किल्स है, एग्जाम्पल यू आर अ डिजाइनर, तो आपको ग्राफिक्स बनाना है, तो यू शुड बी वेरी वेरी sharp in your skills, whatever is your skills. If you are good at quality control or quality management, and you want to get into quality control or quality management का business, you should have very sharp skills. Okay, अगर sharp skills नहीं है then upgrade your skills. Skills upgrade करेंगे ना तो ही मार्केट से आपको पैसा मिलेगा, मार्केट से आपको वैल्यू मिलेगा। whenever you will your skill set are upgraded, your skill set are sharp, तो ही आपको लोग पैसा देंगे। वेंडर्स बिजनेस करने के लिए आपको पैसा देंगे। अगर आपका स्किल सेट शार्प और एकदम अच्छा है तो ही आपको मार्केट से पैसा मिलेगा बिजनेस करने के लिए। ओके, सिंपली टेक लर्निंग from where you can meet your goals। ये आपको फ्रीलांसिंग करना ही है, सो बिजनेस भी करना है, तो यू शुड हैव सम लर्निंग्स बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस। हाउ विल यू गेट लर्निंग्स? मतलब क्या पढ़ना है? अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या पढ़ना है? वो चीज पढ़नी है जो आपको गोल को मीट करने में काम आएगी। वो चीज आपको पढ़नी है, सीखनी है। लेट्स यू थिंक ऑफ बिकमिंग अ फार्मा इंडस्ट्री, अ बिग कंपनी इन फार्मा इंडस्ट्री। आप सोच रहे हो मैं फिनिश फॉर्मुलेशंस लेके आऊँ और उसका मार्केटिंग करूँ और मैं बहुत बड़ी इंटास या सिप्ला जैसी कंपनी बन जाऊँ, ये आपका गोल है। तो उसके लिए आपको यू विल हैव टू स्टार्ट लर्निंग कि मैं ये अचीव करने के लिए कैसे करूँ। ये ऐसे आपके दिमाग से नहीं होगा। स्टार्ट लर्निंग, रीड बुक्स, रीड ब्लॉग्स रिलेटेड टू फार्मा। सो मेरा ये कहना है, अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो यू हैव टू डू लर्निंग, एंड लर्निंग वो करनी है जो आपके गोल्स को मीट करेगा। वो उसी लर्निंग पे फोकस करना है आपको। हाँ, डू नॉट कॉपी। मतलब आप फ्रीलांसिंग या बिजनेस किसी को कॉपी करने के लिए नहीं करना है हम लोग को। जैसे कि गिरीश सर ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया,
मैं भी बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे अभी एग्जांपल, हाथी का बच्चा है, उसको हाथी के पिताजी हाथी को बोलते हैं कि बेटा ईगल की तरह उड़ के दिखा। तो हाथी ईगल की तरह कैसे उड़ेगा? हाथी के बच्चे ने बोल दिया पापा मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं उड़ पाऊंगा। सो फ्रीलैंसिंग या बिजनेस इसके लिए स्टार्ट करना है कि किसी ने स्टार्ट किया है इसलिए मैं भी स्टार्ट कर दूं। ओयो ने स्टार्ट किया है तो मैं भी स्टार्ट कर दूं, ओला ने स्टार्ट किया है मैं भी स्टार्ट कर दूं, ऐसा नहीं है भाई। इफ यू हैव सम स्किल्स इन यू, इफ यू हैव योर माइंडसेट इन यू, इफ यू हैव व्हाट यू से courage, if you have uh, full of energy in you, then only go and start business. कॉपी नहीं करना है, डू नॉट कॉपी कि मैंने इसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो मैं भी बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ, मेरे फ्रेंड ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो मैं भी बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, इफ यू वांट टू डू बिजनेस, आपके अंदर से आग होनी चाहिए बिजनेस करने के लिए। अगर वो आग अंदर से डिजायर होना चाहिए, डिजायर प्लस एनर्जी प्लस पेशेंस होना चाहिए आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगर डिजायर प्लस पेशेंस प्लस एनर्जी है एंड यू आर नॉट कॉपिंग, यू आर नॉट डूइंग फॉर द सेक दैट कि मेरे फ्रेंड ने चालू किया तो मैं भी चालू करता हूँ, अगर उसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो तो मत करना प्लीज। अगर आपके अंदर डिजायर, एनर्जी और पेशेंस है तो ही बिजनेस स्टार्ट करना। अभी मैंने ये रेड अक्षर में लिखा है, ये आपको पढ़ना है। Come on guys, कोई भी एक स्टूडेंट पढ़ो इसको। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें। क्यों कमी रह गई उसे देखें और सुधार करें। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करे। क्या कमी रह गई उसे देखे और सुधार करे, देखे और सुधार करे, देखे सुधार करे, देखे सुधार करे। असफलता आनी ही है आपके लाइफ में। आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अगर असफल नहीं हुए तो आपका बिजनेस आगे जाके फेल हो जाएगा। ओके, असफलता आनी ही है। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको असफलता, फेलियर 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 मिलना ही है। टेक माय वर्ड्स, फेलियर आपको मिलना ही है, बट यू हैव टू बाउंस बैक। फेलियर्स को लेके नहीं बैठना है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, एक्सेप्ट इट एंड फाइंड इट आउट कि क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। ओके, बाउंस बैक, स्टैंड अप। असफलता, आप टेक माय वर्ड्स, असफलता आपको आनी ही है। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करके 3 साल हो गए। 3 साल में मैं 3 बार बैंकक्रप्ट हो गया, 3 बार मैं बैंकक्रप्ट हो गया। फिर मैं क्या करूँ, चुप चुप बैठ जाऊँ कि यार मेरा भी बैंकक्रप्ट हो गया, क्या करूँ। अरे मैं बैंकक्रप्ट कैसे हो गया, क्यों हो गया, अच्छा हो गया तो अब मैं कैसे वापस खड़े हो जाऊं, मैं कैसे बाउंस बैक करूं। ये क्वालिटी भी अंदर होनी चाहिए एक बिजनेसमैन के अंदर कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ओके स्टूडेंट, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. असफलता मिलना ही Yes, है, sir. फेलियर मिलना ही है। प्रिंसिपल मैम, आप एक बार मुझे ये रेड लाइन प्लीज पढ़ो सब स्टूडेंट्स के लिए, या वंदना मैम जो भी अवेलेबल है प्लीज। श्योर श्योर, बिल्कुल। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो। यस, वेरी फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर आपको बिजनेस में आने ही वाला है, फ्रीलांसिंग से ही आएगा, स्टार्टअप में ही आएगा, स्केल अप में भी आएगा, सब जगह फेलियर आएगा। तो एक्सेप्ट इट, करेक्ट इट एंड गो अहेड। अभी नेक्स्ट, फ्रीलांसिंग का आपने सोच लिया, आपने फ्रीलांसिंग कर ली, अभी आपका टाइम आ गया कि मैं एक ऑफिस सेटअप कर लेता हूँ। ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको समझा रहा हूँ। ऑफिस सेटअप करने में ज़्यादा पैसा मत डालना कि मैं एक लेविश ऑफिस बना देता हूँ, मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, लोगों को दिखाना है, फलाना ठिकाना। नो, इट्स नॉट अबाउट वेयर यू वर्क, इट्स अबाउट हाउ वेल यू वर्क। इट्स नॉट अबाउट वेयर यू वर्क, इट्स अबाउट हाउ वेल यू वर्क। यार इधर भी छोटी सी जगह ले लो, घर से काम कर लो। अगर आपके पैसे, क्यों पैसे वेस्ट नहीं करने हम लोग ऑफिस सेटअप में स्टार्टिंग में।
दिस इज द लर्निंग। हम लोग बिजनेस करने में, ऑफिस सेटअप करने में हम लोग को पैसे खर्चा नहीं करना है। अब प्लीज नोट डाउन दी पॉइंट्स व्हाट आई एम टेलिंग। ये जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ ना, नोट डाउन करो। नहीं तो आपने क्या होता है, आपके एज में ऐसा बहुत डिजायर होता है कि मैं बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मेरा लैविश ऑफिस होगा, तो वो चक्कर में आप फेल हो जाओगे। तो फेल हो जाओगे तो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि डोंट स्पेंड मच इन योर ऑफिस सेटअप। वो स्लोली स्लोली आपका पैसा जैसे जैसे आपके पास आएगा, बिजनेस जैसे जैसे ग्रो होगा, वो हिसाब से आपको आपका ऑफिस बड़ा करना है। नेक्स्ट स्टेप इज प्रायोरिटी मैनेजमेंट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ ओरिएंटेड बिजनेस टू एक्चुअल बिजनेस। अभी तक मैंने जो भी आपको समझाया, या इसमें आप अकेले कर रहे थे। अभी आपको एक्चुअल बिजनेस में जाना है। तो एक्चुअल बिजनेस में जाना है तो यू शुड नो द प्रायोरिटी मैनेजमेंट। व्हाट इज योर प्रायोरिटी? आप क्या क्या काम करेंगे और आपकी टीम क्या क्या काम करेगी, उसको प्रायोरिटाइज करना है। सब काम को आपको नहीं करना है, सब काम आपको नहीं करना है। यू हैव टू मेक अ टीम, देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज। ये भी एक स्किल होता है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। क्या क्या काम आपको करना है, क्या क्या काम आपको नहीं करना है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता जाएगा, यू हैव टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स कि मुझे क्या काम मुझे करना है, क्या डिसीजंस मुझे लेने हैं, क्या डिसीजंस आपकी टीम लेगी, वो सब आपको प्रायोरिटाइज करना है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्रायोरिटी अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो आप उसी सर्कल के अंदर फंस जाएंगे, सब काम आपको ही करना पड़ेगा, तो आप उसी सर्कल में फंस जाएंगे। योर बिजनेस विल नॉट ग्रो, क्योंकि दिस इज द टाइम वेयर यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर एक्चुअल बिजनेस। समझो आपने फार्मा, वी आर इनटू फार्मा, सब लोग ज्यादा करके यही सोचते हैं कि मैं फार्मा कंपनी खोलूं। स्टार्टिंग में आपने फार्मा कंपनी खोली, आप खुद एमआर बन गए, डॉक्टर्स को मिल रहे हैं, मेडिसिन प्रमोट कर रहे, बेच रहे। आपका एक सेल आ गया, समझो 5 लाख का। 5 लाख का सेल आने के बाद अभी आपको एक्चुअल बिजनेस ग्रो करना है, तो आपकी धीरे धीरे आपकी टीम बनेगी। आपकी टीम बनेगी तो धीरे धीरे आपको प्रायोरिटाइज मैनेजमेंट भी सीखना है कि मुझे क्या क्या काम मुझे करना है, क्या क्या काम टीम करेगी, वो भी प्रायोरिटाइज करना है। नहीं तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब भी हम लोग स्टूडेंट्स से, हम लोग को इसके बारे में नहीं पता था, टाइप्स ऑफ फर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम लोग स्टूडेंट्स से, हम लोग को कुछ भी नहीं पता था कि प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, एलएलपी क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, लिमिटेड क्या होता है, ये कुछ भी नहीं पता था हम लोग को। सो यू आर लकी स्टूडेंट्स दैट यू आर गेटिंग नॉलेज एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, प्रायर टाइप्स ऑफ फर्म्स। जब हम लोग ने बिजनेस करना स्टार्ट किया था तो हमको इसके नाम भी नहीं पता था। ये एलएलपी क्या होता है यार, ये प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है। सो प्रोप्राइटरशिप मीन्स यू अकेला ही है, ओनर है, अकेला ही है, बिजनेस कर रहा है, उसने सब एम्प्लॉय को रखा है आप बिजनेस करने के लिए। दैट्स ए प्रोप्राइटरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म सिंपल है, पार्टनर्स है इसमें, मैक्सिमम 20 पार्टनर्स ले सकते हो आप, मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं। ओके, पार्टनरशिप फर्म्स के अपने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। पार्टनरशिप फर्म आप अगर चालू करते हो तो पार्टनरशिप फर्म का अलग से टैक्स भरना होगा और डायरेक्टर्स का अलग से टैक्स भरना होगा, मतलब ओनर्स का अलग से टैक्स भरना होगा। पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप इटसेल्फ इज एन एंटिटी, तो उसका अलग से आपको टैक्स भरना होगा। तो थिंक एंड देन गो अहेड कि आपको कौन सा टाइप का बिजनेस करना है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना है, पार्टनरशिप बिजनेस करना है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज एकदम इजी थिंग है, वेरी इजी। पार्टनरशिप बिजनेस थोड़ा डिफिकल्ट इन द सेंस पेपर वर्क वगैरह सब बढ़ जाता है इसमें। नेक्स्ट इज एलएलपी। ये थोड़ा और ऊपर का लेवल हो गया। पहले मैंने खुद ने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर मैंने पार्टनरशिप किया, फिर अभी मेरा बिजनेस थोड़ा बड़ा ग्रो हो गया, देन आई गो फॉर एलएलपी। व्हाट इज एलएलपी? एलएलपी इज लिमिटेड लायबिलिटी फर्म। इसमें क्या होगा, आप अगर आपका बिजनेस को एलएलपी बना देते ना, तो जो भी लायबिलिटी होगी, जो भी लॉस होगा,
या लॉस बताएंगे आप, वो कंपनी का होगा। समझ लो मेरे कंपनी का नाम है XYZ कंपनी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैंने अपनी कंपनी को LLP बना दी, XYZ LLP। तो जो भी लाइबिलिटीज होगी, जो भी लॉस होगा, वो कंपनी का होगा। कंपनी इटसेल्फ विल बी एन एंटिटी। तो इसमें थोड़ा रिस्क, इसमें थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है हम लोग को कभी बैंक लोन्स वगैरह लेने में, क्योंकि अभी हम लोग बड़े हो रहे हैं, राइट। हम लोग प्रोपराइटर से पार्टनर से LLP जा रहे हो, तो हम लोग को फंड लगेगा बड़ा बिजनेस करने के लिए। तो आप LLP करते हो बिजनेस को, तो आपको फंड मिलने में इजी होता है, क्योंकि आप LLP करेंगे तो आपका फर्म ऑडिट होगा। ऑडिट होगा तो आपका पेपर वर्क स्ट्रांग होगा। पेपर वर्क स्ट्रांग होगा तो आपको लोन मिलेगा। लोन मिलेगा तो यू विल ग्रो इन योर बिजनेस। नेक्स्ट इज प्राइवेट लिमिटेड। अभी LLP से और अपग्रेड हो जाता है प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड और LLP सेम ही है, बट प्राइवेट लिमिटेड का अलग से नॉर्म्स है, अलग से लिस्ट ऑफ नॉर्म्स है कि प्राइवेट लिमिटेड में आप, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बन गई तो उसमें आपको क्या क्या करना है। उसको आपको रेगुलर ऑडिट करना है, आपको रेगुलर उसका अकाउंट्स मेंटेन करना है। जो भी आपको लोन मिल जाएगा वो लोन आपको आपकी कंपनी पे मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आपका फर्म को ऑडिट कंपलसरी करवाना है इसमें। आई डोंट नो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके ऊपर से तो नहीं जा रहा है स्टूडेंट्स? No, sir. ये आपके ऊपर, अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे प्लीज़ पूछ लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको कोई नहीं सिखाने वाला है, ये आपको खुद को सीखना है। मैंने भी खुद ही सीखा था कि प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, LLP क्या होता है, लिमिटेड क्या होता है। ओके, अभी LLP के बाद प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड, वन सेकेंड ना, एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, सॉरी। सॉरी गाइस। फिर उसके बाद होता है लिमिटेड। आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो गया, एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं आप। आपने सुना होगा वेलनेस फॉर एवर, सुना है मेडिकल स्टोर का चेन? वेलनेस फॉर एवर का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? Yes. Yes, हेलो sir. गाइस, वेलनेस फॉर Yes, एवर sir. क्या है ये? Yes, sir. क्या है ये? मेडिकल स्टोर का फ्रेंचाइजी चेन, राइट। Yes, sir. हाँ, वो है, उसका एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जब ये वेलनेस फॉर एवर ने स्टार्ट किया, वो प्रोपराइटरशिप था, तो ओनर का नाम अशरफ भाई था। उसने फिर अपने फर्म, अपने मेडिकल स्टोर को पार्टनरशिप बनाया। उसने 2-3 पार्टनर्स लिए, जो उसके राइवल्स थे उसको उसने पार्टनर्स बना दिए और ग्रो हो गया। फिर उसने उसकी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बना दिया, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड बनाना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू ग्रो, इफ़ यू वांट टू गेट लोन्स। इससे आपको लोन मिलता है, लोन मिलता है तो आपको ग्रो होता है। अभी उसकी कंपनी वेलनेस फॉर एवर की 230 या 250 मेडिकल स्टोर्स हो गई। ओके, नाउ नाउ उसने प्राइवेट लिमिटेड बनाने के बाद तो कंपनी इतना ग्रो हुआ कि उसमें आधार पूनावाला ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। यू नो आधार पूनावाला गाइस? गाइस यू नो आधार पूनावाला? हेलो, Yes, yes. आपको आधार पूनावाला मालूम है? Serum Institute. यस। तो कोविशील्ड, राइट। आधार पूनावाला ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया। आधार पूनावाला का वेलनेस फॉर में इन्वेस्टमेंट आने से वो कंपनी, अभी उन्होंने खुद के, जब भी कोई कंपनी खुद का IPO लॉन्च करता है तब वो कंपनी हो जाता है लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाता है। तो अभी वेलनेस फॉर एवर ने पार्टनरशिप से स्टार्ट, प्रॉपर्टीशिप से स्टार्ट किया, पार्टनरशिप पे आए, LLP पे आए, प्राइवेट लिमिटेड पे आए। अब नाउ उन लोग लिमिटेड हो गए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई, क्योंकि उन लोग ने IPO लॉन्च किया। IPO लॉन्च किया तो मार्केट से पैसे मिल रहे हैं उन लोग, सो दैट दे कैन ग्रो फर्दर। आई थिंक ये स्लाइड सबको अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Sure. Yes, sir.
उसके बाद आता है मार्केट सेगमेंटेशन। आपको बिजनेस करना है, ओके। अभी आप फ्रीलांसिंग से स्टार्टअप की तरफ आ रहे हो, फ्रीलांसिंग से आप स्टार्टअप की तरफ आ रहे हो। आप जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग कर रहे थे, आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो। बिफोर स्टार्टिंग दी स्टार्टअप, मार्केट सेगमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। मार्केट सेगमेंटेशन विल मेक इट इजी फॉर मार्केटर टू कस्टमाइज देयर कैंपेन, ओके। मार्केट सेगमेंटेशन में क्या आता है? मार्केट, कस्टमर एंड कंज्यूमर। स्टूडेंट्स, आपको कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में फर्क मालूम है? Yes, sir. कैन यू प्लीज, कोई मुझे समझाएगा कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क है? Customer is the one who buys the anything, and consumer is the one who intake in herself or himself. फॉर एग्जाम्पल? Like the medicine is bought by the customer, but the consumer is the one who take the medicine. राइट। So you should know your market, you should know your customer, you should know your consumer. खिलौने, मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपने तो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बच्चे के खिलौने उसके माँ बाप खरीदते हैं, माँ बाप इज कस्टमर, बच्चा इज कंज्यूमर, वो उस खिलौनों के साथ खेलता है। एकदम सिंपल है ये। स्टूडेंट्स प्लीज इंटरेस्ट करो तो मुझे Yes, समझ sir. आएगा Yes, कि sir. आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे इसमें, कि मैंने जो इतना एनर्जी और इतना जो टाइम मैंने निकाला और आपके लिए जो बनाया है, वो मतलब आप इंटरेस्ट से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, मुझे पता करना है। Yes, sir. प्लीज इंटरेक्ट करो और Yes, प्लीज yes. नोट ऑफ इट। ये आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो, ओके। बिफोर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, एनालाइज योर मार्केट का सेगमेंटेशन करो। स्टार्टअप सक्सेस हैपेंस व्हेन यू सी through the eyes of customer, not through the perspective of the company. स्टार्टअप सक्सेस कभी होता है जब हम लोग कंज्यूमर की आंख से देखते हैं, कस्टमर की आंखों से देखते हैं, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी। आप सोच रहे हो वैसा प्रोडक्ट लेके आएंगे मार्केट में, जरूरी नहीं है वो हिट हो जाएगा। कस्टमर को क्या चाहिए वो प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आएंगे तो वो डेफिनेटली हिट होगा। स्टार्टअप सक्सेस happens when you see through the eyes of the customer, not through the perspective of the company. Make a note of it please guys, बहुत important point है ये। अब मार्केट सेगमेंटेशन कैसे करना है? नो योर कस्टमर। आप जो प्रोडक्ट लाना चाहते हो, आपने दिमाग में सोचा है जो भी प्रोडक्ट, हु इज योर कस्टमर, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कस्टमर, क्या मार्केट साइज है उसका, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। नैरो डाउन योर मार्केट को आप नैरो करेंगे तो आपका फायदा ज्यादा होगा स्टार्टिंग में, स्टार्टअप में। नैरो डाउन योर मार्केट, ओके। startup does not begin by hiring people or building products or hiring developer. It begins by fulfilling the unmet need of the customer. Students, कितने स्टूडेंट्स है? 54 स्टूडेंट्स है। Come on students, this is not for this session is not for a sake। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको कहीं ना कहीं लाइफ में आगे आके आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा। कितना दिन आप जॉब करेंगे, यू थिंक ऑफ इट। जॉब में आपका कंपनी आपको, आपका बॉडी, आपका माइंड चूस लेगा। एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम यू विल हैव टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। सो प्लीज, जो देगा यहाँ अटेंशन उसका दूर हो जाएगा टेंशन, ओके। मुझे सारे स्टूडेंट्स बोलने चाहिए यस सर करके जब मैं पूछूंगा। स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ये जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है सब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। कम ऑन गाइस, 1 2 3 स्टार्ट। Startup does not begin by hiring people or building products or hiring developer. It begins by fulfilling the unmet needs of your customer. स्टार्टअप डज नॉट बिगिन बाय हायरिंग पीपल। आप अच्छे लोगों को खरीद लो, अच्छा प्रोडक्ट लेके आ जाओ, या अच्छा
आप उसका वेबसाइट बना लो, उससे आपका स्टार्टअप स्टार्ट नहीं हो गया। स्टार्टअप जब भी स्टार्ट होगा जब कस्टमर का अनमेट नीड आप कस्टमर को देंगे, तभी आपका प्रोडक्ट हिट होगा। ओके, हाँ, ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, फोकस पायलट मार्केट। अभी ये रेड अक्षर में आया है, तो कोई भी एक स्टूडेंट इसको पढ़ेगा। आई शुरू में सपोज, बिजनेस बड़ा नहीं करना है, शुरू में जोर से बोलना, बिजनेस खड़ा क्या नाम है करना आपका? है। शुरू में बिजनेस बड़ा नहीं करना है, शुरू में बिजनेस खड़ा करना है। शुरू में बिजनेस बड़ा नहीं करना है, शुरू में बिजनेस खड़ा करना है। शुरू में बिजनेस बड़ा नहीं करना है, शुरू में बिजनेस खड़ा करना है। मैंने खुद ने ये मिस्टेक की थी, शुरू में बिजनेस बड़ा नहीं करना है, शुरू में बिजनेस खड़ा करना है। फॉर दैट यू हैव टू फोकस पायलट मार्केट। आपको एक मार्केट लेके उसको उसके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। मैंने ये बहुत गाइस मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी। प्लीज इस चीज को आप अच्छे से सुनो, समझो। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप पहले पायलट मार्केट लो, छोटा सा मार्केट लो। मैंने क्या सोचा, मैं रातों रात ज्योग्राफिक एरिया बढ़ा देता हूँ, मेरा ज्योग्राफिक एरिया बढ़ता जाएगा, मेरा बिजनेस बड़ा होता जाएगा, मुझे प्रॉफिट मिलता जाएगा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा रातों रात। कोई बड़ा नहीं बनता। चलो रातों रात, मैं सोचा रातों रात तो नहीं बनूंगा, मेरा ज्योग्राफी एरिया बड़ा हो जाएगा। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करना है, आपको ज्योग्राफी एरिया छोटा रखना है। आपको पायलट मार्केट ढूंढना है। पायलट मार्केट बोले तो छोटा सा मार्केट आपको लेना है, आपके घर के आजू बाजू समझो 10 किलोमीटर का रेडियस पे ही मार्केट लेना है। ठीक है, उस पे ही आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप अभी कॉलेज में नहीं हो, जॉब पे भी नहीं हो, फ्रीलांसिंग पे भी नहीं हो, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। वो करने के पहले आपको पायलट मार्केट पे काम करना है। वाई फोकस्ड पायलट मार्केट। ठीक है, अगर आप पायलट मार्केट पे काम करके करते हो तो यू स्टार्ट डोमिनेटिंग स्मॉल मार्केट। ठीक है, लर्न फ्रॉम स्मॉल मिस्टेक। समझो आपने बिजनेस स्टार्ट किया और पूरे देश में फैला दिया। आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया और पूरे देश में फैला दिया। ओके, तो आप एक मिस्टेक करेंगे ना तो पूरे देश में मिस्टेक होगी। अगर आप फोकस्ड पायलट मार्केट से स्टार्ट करेंगे ना तो आप मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक तो करने ही वाले, कोई भगवान नहीं है, मिस्टेक 100% होने वाली है। सो मिस्टेक होगी तो यू विल लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक, और आप जब आगे बढ़ेंगे, आगे ज्योग्राफिक एरिया बढ़ाएंगे, तब वो मिस्टेक नहीं करेंगे। सो लर्न फ्रॉम स्मॉल मिस्टेक्स। आप नया नया बिजनेस करते हो ना तो आपके पास रिसोर्स भी लिमिटेड होता है। अगर आप ज़्यादा फैलाने जाएंगे ना तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा। रिसोर्सेज मतलब पैसा, ह्यूमन पैसा भी आपको ज़्यादा लगेगा। उसके वजह से आप कैश इनफ्लो नहीं होगा, बिजनेस में कैश इनफ्लो नहीं होगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो आप एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम आप बिजनेस क्लोज करने की सोचेंगे। इसके लिए पायलट मार्केट करना ज़रूरी है। अच्छा, पायलट मार्केट करने के फायदे क्या है? पायलट मार्केट तो आपको करना ही है। आप पायलट मार्केट समझे ना स्टूडेंट्स? यस सर। पायलट मार्केट मतलब हम लोग को एक छोटा सा मार्केट लेना पहले, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के पहले। समझो मुंबई, हम लोग पूरा महाराष्ट्र नहीं करेंगे। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने फार्मा कंपनी लॉन्च की फिनिश फॉर्मुलेशंस में। मैं सिर्फ बॉम्बे के डॉक्टर्स को मिलूंगा और उतना ही बिजनेस करूंगा। मैं पूरे महाराष्ट्र में नहीं जाऊंगा या मैं पूरे इंडिया में नहीं जाऊंगा। स्टार्टिंग में मैं मुंबई में काम करूंगा। इसको बोलते हैं फोकस्ड पायलट मार्केट। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, तो शुरू में हमको बिजनेस बड़ा नहीं करना है, शुरू में हमको बिजनेस खड़ा करना है। तो उसके क्या क्या फायदे होंगे आपको? यू विल डोमिनेट इन स्मॉल मार्केट, यू विल लर्न फ्रॉम स्मॉल मिस्टेक, यूज लिमिटेड रिसोर्सेस, आपकी रिसोर्सेज लिमिटेड यूज होगी। थर्ड, आपका वर्ड ऑफ माउथ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस पर एग्जाम्पल देता हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हैव मोर आइसक्रीम सुना है आपने? हैव मोर आइसक्रीम, हैव Yes, मोर sir. आइसक्रीम के बारे में सुना है? हैव मोर आइसक्रीम ने उसका आइसक्रीम पहले लॉन्च किया गुजरात में। लॉन्च किया उसने अपना आइसक्रीम।
उसने देखा भाई गुजरात में अच्छा हो रहा है, मेरा बल्ले बल्ले हो रही है गुजरात में, तो गुजरात में सब एक दूसरे से वर्ड, अरे तूने हैवमोर आइसक्रीम खाई, अरे तूने हैवमोर आइसक्रीम खाई, अरे तूने हैवमोर आइसक्रीम खाई, वर्ड ऑफ माउथ हो गया। तो आप स्मॉल मार्केट में करेंगे ना तो वर्ड ऑफ माउथ होगा, वो आपको काम आएगा, आप बड़े मार्केट में जाएंगे तभी। तो वर्ड ऑफ माउथ हो गया हैवमोर का। फिर हैवमोर आई मुंबई में, क्योंकि मुंबई में सब गुजराती है, गुजराती कम्युनिटी है ना, तो लोगों को समझ में आया कि भाई हैवमोर करके कुछ है जो गुजरात से आया है, तो अब उसको इधर सक्सेस मिला। अगर वो डायरेक्ट मुंबई में आता तो उसको सक्सेस नहीं मिलता। उसका वर्ड ऑफ माउथ हो गया गुजरात में, उससे वो वर्ड ऑफ माउथ मुंबई में आया। दूसरा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बहुत ही, ये एग्जांपल बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है अमेजोन का। अमेजोन ने पहले अपने वेबसाइट पे बुक्स बेचना चालू किया। उसने बुक्स बेचना चालू किया। बुक्स बेचने चालू करने के टाइम पे उसको पता चला कि मेरा ये ऑनलाइन बिजनेस चल सकता है। ओके, इन द मीन वाइल जब भी वो बुक्स बेच रहा था तो उसने उसका वेबसाइट बना लिया, उसने उसका पोर्टल बना लिया, उसने उसका ह्यूमन रिसोर्स यूज़ कर लिया, सब यूज़ कर लिया। अब उसका सेटअप हो गया। अब उसने सोचा कि मैं बुक्स के अलावा दूसरी चीज़ें भी बेचता हूँ। तो उसने क्या किया, पहला उसने फोकस पायलट मार्केट किया बुक्स के ऊपर। ओके, जब वो बुक्स के ऊपर फोकस पायलट मार्केट किया तब उसने उसका दूसरा काम भी हो गया, जैसे पोर्टल बनाना, जैसे मार्केटिंग करना, ये सब हो गया। फिर उसने अपना इलेक्ट्रॉनिक बेचने चालू कर दिया, फ्रॉम पिन टू पेन एवरीथिंग अमेजोन बेचता है अभी। पर उसने स्टार्ट कैसे किया, फोकस पायलट मार्केट से स्टार्ट किया। ये टॉपिक, आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ गया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने भी इसमें ठोकर खाई, आप ठोकर नहीं खाना इसमें। बिजनेस, शुरू में बिजनेस बड़ा नहीं करना है, याद रखो, शुरू में बिजनेस खड़ा करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट रिसर्च वर्सेस इंट्यूशन। गाइस, आप बोर तो नहीं हो रहे ना? नो सर। No, sir. अगर आपको बिजनेस करना है ना तो आप बोर नहीं होंगे। अगर आपको बिजनेस नहीं करना है तो आप डेफिनेटली बोर हो जाएंगे। अगर आपको बिजनेस करना है तो मैंने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। डेफिनेटली अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये विल डेफिनेटली हेल्प इट आउट, अगर आपको बिजनेस करना है तो। 7 पॉइंट इज मार्केट रिसर्च वर्सेस इंट्यूशन। इसका क्या मतलब होता है कि हम बिजनेस करने के पहले कुछ मार्केट रिसर्च करते हैं। क्या होता है ना, कभी कभार हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो तुक्के पे स्टार्ट करते हैं, भाई ये प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं यार, चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा, अपना इंट्यूशन, अपना तुक्का। ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू डू योर मार्केट रिसर्च बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस। मैंने भी मेरा मार्केट रिसर्च किया था। मैंने ब्रेसॉन लॉन्च किया, मैंने मेरा ब्रेसॉन रिहेबिलिटेशन एड का बिजनेस लॉन्च किया। मैंने भी मार्केट रिसर्च किया। मैंने क्वेश्चनर बनाई, वो क्वेश्चनर बना के मैं डॉक्टर्स के पास गया कि सर आपको मेरे प्रोडक्ट में क्या चाहिए, क्या मेरे प्रोडक्ट में आपको प्राइसिंग का इशू है, क्या मेरे प्रोडक्ट में आपको कोई एमआर विजिट, मेरा जो सेगमेंट है उसमें आपको कोई एमआर विजिट करता है या नहीं करता है, क्या आप, अच्छा दूसरा, मैं कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करूँ, उसके लिए भी मैंने क्वेश्चनर बनाया। डॉक्टर के पास गया कि सर आप ये प्रोडक्ट, ये जो लिस्ट है उसमें से आप ये प्रोडक्ट कितना लिखते हो, ये प्रोडक्ट कितना लिखते हो, ये प्रोडक्ट कितना लिखते हो। डॉक्टर्स मुझे बताया कि भाई मैं एलएस बेल्ट 15 लिखता हूँ महीने का, मैं निकेप 10 लिखता हूँ, मैं एंकलेट और एल्बो तो लिखता ही नहीं हूँ। अंडरस्टूड? तो वो हिसाब से मार्केट रिसर्च करना ज़रूरी है। ऐसे इंट्यूशन से मैं अपने तुक्के से मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकता कि भाई मैं अभी शोल्डर इमोबिलाइजर या वेरिकोज वेन स्टॉकिंग्स लॉन्च कर देता हूँ, या अब चलो अभी मैं थर्मामीटर मैंने अभी थर्मामीटर लॉन्च किया बहुत रिसेंटली, उसका नाम है डीजी ऑन थर्मामीटर। मैंने अभी थर्मामीटर लॉन्च किया, तो मैं थर्मामीटर लॉन्च करूँ, क्या मैं थर्मामीटर लॉन्च विदाउट मार्केट रिसर्च से कर दूँ? एक मिनट, आई विल हैव टू पिक दिस कॉल। हेलो, ना ना ना, बस विवानी से हमें, ठीक है, चल। मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, नाउ आई हैव टू गेट फास्टर। मार्केट रिसर्च वर्सेस इंट्यूशंस के बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ओयो ने मार्केट रिसर्च किया कि भाई लोगों को क्या ज़रूरत है,
लोगों को अफोर्डेबल रूम्स की ज़रूरत है, लोगों को लग्जरी होटल से ज़्यादा लोगों को अफोर्डेबल रूम्स की ज़रूरत है। उसने मार्केट रिसर्च किया, वो सक्सेसफुल हुआ। ओला ओला ने मार्केट रिसर्च किया कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रहा है यार, टैक्सी वाला मैं किधर भी जा रहा हूँ तो बोलता नहीं मैं उधर नहीं जाऊँगा। अरे भाई जिधर मुझे जाना उधर तो जाना ही पड़ेगा, या ड्राइवर का इशू है, या टाइम पे गाड़ी बुलाने का इशू है। ये सब मार्केट रिसर्च किया उसने, उसके बाद ओला उसने लॉन्च किया। अच्छा, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जिसने मार्केट रिसर्च नहीं किया और अपने तुक्के से बिजनेस स्टार्ट किया। गाइस सुन रहे हो? यस अर्बन क्लैम्प मालूम है आपको? अर्बन क्लैम्प कंपनी यस सर जो घर पे आके सर्विस देती है, Yes, उसने sir. क्या किया, पहले तुक्के से बिजनेस स्टार्ट किया यार। वो दो बिजनेसमैन है, दो पार्टनर है, वो जा रहे थे दिल्ली फ्लाइट में। उन्होंने सोचा यार ये इधर फ्लाइट में हम लोग को वाईफाई मिलना चाहिए, तो उन लोग को मतलब उन्होंने स्टार्ट, यार ये अच्छा आइडिया यार, मैं सब जगह वाईफाई लगा लेता हूँ, मैं ट्रेन में वाईफाई लगा लेता हूँ, मैं बस में वाईफाई लगा लेता हूँ, मैं टैक्सी में वाईफाई लगा लेता हूँ, मैं रिक्शा में वाईफाई लगा लेता हूँ, तो मेरा बिजनेस चलेगा। अच्छा, जब उन लोग एग्जीक्यूट ये तुक्का लगाया, उन्होंने पैसा डाला, ये काम चालू करना स्टार्ट किया, बस वाले के पास गए भाई, बस वाले के पास बोला कि भाई मुझे वाईफाई लगाना है आपके इसमें, वाईफाई लगाना है आपके बस में। बस वाला बोल रहा है यार पहले से कस्टमर नहीं है, बस का भाड़ा लोगों को नहीं पड़ रहा है, आप वाईफाई लगाएंगे मैं आपको पैसा कहाँ से दूँ? तो उनका ये बिजनेस फ्लॉप हुआ। फिर उन्होंने मार्केट रिसर्च किया कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो हिसाब से उन्होंने कंपनी लॉन्च किया अर्बन क्लैन। लोगों को रियली ज़रूरत थी कि कोई दिवाली की साफ सफाई आके उनके घर पे करे, तो अर्बन क्लैम्प आप भी दिवाली की साफ सफाई उनके घर पे जाके करती है। बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी ग्रो हो रही है ये। ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट रिसर्च वर्सेस इंट्यूशन। इंट्यूशन बोले तो तुक्का मार के बिजनेस नहीं करना है हमको। Okay. मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा 2 मिनट, 2 मिनट। मैम मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले लूंगा, चलेगा? Yes, fine, fine, Girish, it's okay. मैम आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, yes, I'm also thinking to start up my own something business. I'll connect to you later. But don't leave college, madam. क्या बोले? Don't leave college. Yes, ma'am. Freelancing. नहीं, बहुत अच्छा है। मैंने Right, वंदना मैम से along with the job, freelancing. थैंक नहीं यू। तो त्रिवेदी जी पता चला कि सारे टीचर बिजनेस में आ गए। बिजनेस नॉट ए इजी कप ऑफ टी। हाँ, अच्छा बहुत अभी अच्छी आपको तरह, बहुत बढ़िया बता रहे हो, हट के बता रहे हो, बहुत जेन्युइन यू आर टॉकिंग एंड विच इज नॉट अदरवाइज अवेलेबल। राइट राइट राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैम। अभी आपने मार्केट रिसर्च कर दी, अब आपने प्रोडक्ट लेके आ गए। स्टूडेंट्स, आपने मार्केट रिसर्च कर दिया, प्रोडक्ट लेके आ गए, अब वो प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसे पता करेंगे उसको? जैसे हम लोग साइंस में लिटमस टेस्ट करते थे, मालूम है, एसिडिक अल्कलाइन। स्टूडेंट्स, Yes, sir. आपको लिटमस टेस्ट Yes, मालूम है कि sir. नहीं मालूम है? बेसिक है अपना साइंस का। Yes, sir. हाँ, वैसे ही हम लोग के बिजनेस में भी एक लिटमस टेस्ट हो रहा है। आपका प्रोडक्ट आपने लेके आया, यू थिंक ऑफ इट कि मैं प्रोडक्ट लाया, क्या उसका मुझे प्री पेमेंट दे सकता है कोई? जैसे मैं बिल्डर बन गया, मेरे को बिल्डिंग बनाने के पहले मैंने अच्छा सा बोर्ड बना दिया, यार मैं बुकिंग कर रहा हूँ, सबसे पैसा ले रहा हूँ और पैसा मिलने के बाद मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, ये प्री पेमेंट का एक हो गया। क्या मेरा प्रोडक्ट पे कोई डिपॉजिट दे रहा है? अच्छा, डिपॉजिट नहीं दे रहा है, क्या कोई मुझे मेरे प्रोडक्ट पे लेटर ऑफ इंटेंट दे रहा है कि मैं ये प्रोडक्ट खरीदूंगा? लिख के दे रहा है मुझे कोई, ये मैं प्रोडक्ट में लेके आया, ये मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा? अच्छा, क्या आपने कुछ प्रोडक्ट निकाले, वो पायलट परचेस के लिए रखे, क्या वो प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? बॉस, अगर आपने फुल फ्लेज में बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पायलट लिटमस टेस्ट नहीं किया, तो आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, पैसा ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा चलो वो सब छोड़ो, आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, क्या उसमें लोगों का इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो उतना सोचो आप। जो प्रोडक्ट में लेके आ रहा हूँ उसमें लोगों का इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये सब लिटमस टेस्ट है बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस, बिफोर स्टार्ट लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट। ये लिटमस टेस्ट है, प्लीज नोट इट डाउन, आपका बहुत फायदा होगा। फायदा इसके लिए होगा कि आपका पैसा
ब्लॉक नहीं हो जाए, इन्वेस्ट करेंगे आप, पैसा फंस जाएगा, दूसरा काम नहीं कर पाएंगे आप। अब आ गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मैं थोड़ा फास्ट जाना चाहता हूँ अभी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मैं ज़्यादा बात करके करूँगा क्या, सबका अलग अलग दिमाग में अलग अलग प्रोडक्ट होंगे। मैं ये प्रोडक्ट लेके आऊँगा, मैं सॉफ्टवेयर लेके आऊँगा, मैं हार्डवेयर्स लेके आऊँगा, मैं मेडिसिन लेके आऊँगा, मैं टेक्नोलॉजी लेके आऊँगा, सबके अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे। तो दे डिपेंड्स अपॉन कि उन लोगों को प्रोडक्ट क्या डेवलप करना है, इट्स ऑन देयर माइंड सेट। ओके, लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के पहले प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए उसके बेसिक्स में आपको बता सकता हूँ। वो प्रोडक्ट से कस्टमर को वैल्यू मिलनी चाहिए, कस्टमर पैसे देने को तैयार हो जाने चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कस्टमर उसका फीडबैक होना चाहिए, कस्टमर से उसका फीडबैक अच्छा आना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट हम लोग को मार्केट में लाने हैं। अब मैंने एक रेड कलर में लिखा है, उसको कोई स्टूडेंट पढ़ेगा। स्टूडेंट्स बोर हो गई क्या? हेलो 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 हेलो। बिजनेस में आना पार्ट ऑफ लाइफ है, मगर उस प्रॉब्लम को खुशी खुशी सॉल्व करना आर्ट ऑफ लाइफ है। बिजनेस में आना, बिजनेस में प्रॉब्लम का आना, बिजनेस में प्रॉब्लम का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, मगर उस प्रॉब्लम को खुशी खुशी सॉल्व करना आर्ट ऑफ लाइफ है। आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आएगी, आएगी ही आएगी, नहीं आएगी वो बिजनेस ही नहीं हो सकता। अब भाई जो स्टूडेंट बोला उसका नाम क्या, नाम क्या आपका सर? ओमकार। हाँ, ओमकार। ओमकार, ओमकार। यस सर। ओमकार, बिजनेस करना है? ओमकार, बिजनेस करना है आपको? अब तक सोचा तो नहीं हूँ सर, फिलहाल तो नहीं। बिजनेस में प्रॉब्लम का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, मगर उस प्रॉब्लम को खुशी खुशी सॉल्व करना आर्ट ऑफ लाइफ है। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि वो प्रॉब्लम को आप कैसे लेते हो, उसको कैसे सॉल्व करते हो। इट्स आर्ट ऑफ लाइफ। अब प्रोडक्ट लाया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कस्टमर कहाँ से लाऊं? मैंने एक सॉफ्टवेयर लेके आया, मैं एक एप्लीकेशन लेके आया, मैं एक प्रोडक्ट लेके आया, उसके कस्टमर कहाँ से लाऊं? वंदना मैम, हेलो। Yes, हेलो, yes, आप लोग, Girish. हाँ आप लोग हो ना? Yes, we are there. इंटरेस्ट आ रहा है ना आपको? Yes, yes, definitely. Mic is मैंने muted, प्रोडक्ट लाया, so as to avoid the disturbance. हाँ हाँ नो प्रॉब्लम। मैंने प्रोडक्ट लाया, मैं वो प्रोडक्ट लाया, उसके कस्टमर कहाँ से लाऊं? कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर एक्विजिशन इज, भाई इसमें सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है, कस्टमर ही नहीं आते। बिजनेस में सब कुछ हो जाता है, आइडिया आ जाती है, कॉन्सेप्ट हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, कस्टमर ही नहीं आते। कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर कैसे लाएंगे? इंट्रोस्पेक्ट करो, हाउ विल कस्टमर नो अबाउट योर प्रोडक्ट, हाउ विल कस्टमर एनालाइज योर प्रोडक्ट, हाउ विल कस्टमर एक्वायर योर प्रोडक्ट। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढो, मन ही मन में 3 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढो, यू विल डेफिनेटली नो हाउ विल यू गेट योर कस्टमर। पहले इंट्रोस्पेक्ट करो, सेकंड बिल्ड नेटवर्क, ज्वाइन प्रोफेशनल एसोसिएशन, अटेंड इवेंट्स, गिव अ स्मॉल टॉक जैसे मैं आज दे रहा हूँ, क्रिएट अ लव बैंक अकाउंट। हाँ, लव बैंक अकाउंट क्या होता है मालूम है? हमको एक अकाउंट बनाना है जिसमें रिलेशनशिप बिल्ड होती है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होती है। आपके एक्स कलीग है, या आपके व्यापारी दोस्त लोग हैं, या आपके कस्टमर्स है, आपके कस्टमर्स है, आपके बायर्स है, आपके परचेसर है, आपके वेंडर्स है। मेक अ गुड रिलेशन विद देम। ओके, मेक अ गुड रिलेशन विद देम। हमको पहला देना है, देना है, वी हैव टू गिव फर्स्ट। हमको पहले देना है, गिव गिव गिव, फिर थोड़ा सा लेना है। हम लोग देंगे, फिर थोड़ा सा लेंगे ना, तो सब लोग हम लोग को देंगे। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग को लव बैंक अकाउंट खोलना है, एक रिलेशनशिप बनाना है लोगों के साथ। हम लोग देंगे देंगे देंगे, तो ही हमको थोड़ा मांगेंगे ना, तो हमको दे देंगे लोग। सो क्रिएट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएट लव बैंक अकाउंट, मतलब नेटवर्क बिल्ड करने के लिए।
Become a businessman, not a salesman. Last thing, follow up, follow up, follow up. कस्टमर एक्विजिशन का लास्ट पॉइंट है फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप. आपने कस्टमर तो बना लिए, ठीक है, आपने कस्टमर तो बना लिया, उसको फॉलो अप नहीं किए. ये तो वैसे ही हो गए ना, जैसे हम लोग छाननी के अंदर चाय छान रहे हैं, कस्टमर तो बना रहे हैं, नीचे से कस्टमर निकल रहे हैं अपने, निकल रहे हैं अपने, निकल रहे हैं. हम लोग ने जैसे कि टब हो गया, टब में नीचे होल है, हम लोग पानी भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, नीचे से पानी निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है. तो अगर वो पानी को, जो टब है उसको प्लग लगा दे, तो कस्टमर को फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कस्टमर फॉलो अप आप रखेंगे तो कस्टमर आपके साथ जुड़ेंगे. जैसे वन ऑफ द एग्जांपल, मैं एक इन्वेस्टर के पास गया, मेरा एग्जांपल देता, मैं एक इन्वेस्टर के पास गया, बोल रहा है नहीं दूंगा पैसा. अरे नहीं देगा, फॉलो अप किया, सर सर सर, मैंने 30-40 बार उससे मीटिंग कर ली. अब वो थक के गया, बोला तेरा बिजनेस कैसा भी हो भाई, तू बंदा जो है वो फॉलो अप इतना किया कि तू पैसे ले ले भाई. अंडरस्टूड? इतना फॉलो अप करना है, लेकिन इतना भी फॉलो अप नहीं करना है कि कस्टमर इरिटेट हो जाए. अंडरस्टूड? LIC एजेंट्स आपको मालूम है, फॉलो अप कर करके जान ले लेते अपनी. तो इतना भी फॉलो अप नहीं करना है कि कस्टमर इरिटेट हो जाए. फॉलो अप इतना करना है कि विलिंगनेस बताए आपको कि मेरे को विलिंग है करने का. दिस द डिफरेंस बिटवीन फॉलो अप. ठीक है, ये मैं पढ़ूंगा. बिल गेट्स क्या बोलता है, हाउ यू गैदर मैनेज योर इन्फॉर्मेशन, 2 बार लिख दिया मैंने, हाउ यू गैदर मैनेज योर इन्फॉर्मेशन विल डिटरमाइन यू विल विन और लूज. आपकी इंफॉर्मेशन आप कैसे गैदर करते हैं और उसको कैसे मैनेज करते हैं विल डिटरमाइन वेदर यू विल विन और लूज. नेक्स्ट, न्यू मार्केट. अभी आपका बिजनेस फ्रीलांसिंग से स्टार्टअप से बिजनेस हो गया है स्टार्ट. अभी आपको अपने को स्केल अप करना है. एंड नाउ आई विल गो वेरी फास्ट. स्केल अप कैसे करना है बिजनेस? आइडेंटिफाई न्यू मार्केट. मार्केट में गैप ढूंढो आप. हाँ, बिगिन विथ स्मॉल मार्केट. पेरिफेरी से जाओ. पेरिफेरी बोले तो अब वो खिचड़ी है, खिचड़ी गर्म है, बीच में हाथ डालेंगे हाथ जल जाएगा. पेरिफेरी से खाओ उसको. इसको बोलते हैं बिगिन विथ स्मॉलर मार्केट ऑफ पेरिफेरी. पेरिफेरी से बिजनेस के अंदर जाओ. हाँ, अभी आपका बिजनेस स्केल अप हो रहा है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलिंग अप ऑफ बिजनेस. गिव लेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. गिव, अगर आप नए बिजनेस में जा रहे हो तो क्रेडिट कम दो डिस्ट्रीब्यूटर को. गिव लेस क्वांटिटी एंड लेस क्रेडिट टू योर कस्टमर. डोंट ब्लॉक योर मनी. टेक प्रीवियस पेमेंट बिफोर सेकंड सप्लाई. वेरी इंपॉर्टेंट. टेक प्रीवियस पेमेंट बिफोर सेकंड सप्लाई. डिसाइड योर क्रेडिट लिमिट. आप एक क्रेडिट लिमिट डिसाइड कर दो कि भाई मैं अभी ये मार्केट में जा रहा हूँ तो मुझे 30 डेज का क्रेडिट देना है या 15 डेज का क्रेडिट देना. क्रेडिट लिमिट डिसाइड कर दो. आप अगर क्रेडिट लिमिट डिसाइड नहीं करें, कस्टमर आराम से आपको पैसा देगा, उसमें आपका पैसा फंस जाएगा, आपका बिजनेस में आपका फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा. नया बिजनेस, नया मार्केट में जा रहे हो, वहां पे वापस आप लोकल ब्रांड बन जाओ, वहां के वर्ड ऑफ माउथ बन जाओ और उधर से नेक्स्ट मार्केट अपने को जाना है. कीप डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रीजनेबल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रीजनेबल रखेंगे तो आपका फायदा होगा. अच्छा, अभी आप न्यू मार्केट में जाते हो तो डिफाइन योर कोर. ऑलवेज फोकस ऑन योर कोर, तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा. अगर आप फोकस नहीं करेंगे आपके कोर पे तो आपका कस्टमर स्विच हो जाएगा. आपका कोर, आपका यूएसपी क्या है, उस पर आप फोकस नहीं करेंगे तो आपका कस्टमर दूसरी जगह चला जाएगा. If you know your core very well, there will be certain level of protection. कि भाई मेरा कस्टमर मेरे पर विश्वास करता है, मेरा कस्टमर को ये, मेरा कोर जो है उसकी वजह से मेरा कस्टमर किधर और नहीं जाएगा. सर्टेन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आ जाएगा. आपका कोर, अगर आपको यू नो योर कोर, यू हैव योर यूनिक यूएसपी, आपको आपका प्रोडक्ट यू विल पुट अहेड टू द कॉम्पिटिटर. आपके कॉम्पिटिटर से भी आप आगे चले जाएंगे. एग्जाम्पल ऑफ कोर. बिजनेस का कोर क्या होता है उसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि बिजनेस का कोर क्या होता है. यू शुड नो योर कोर ऑफ योर बिजनेस. लाइक माइक्रोसॉफ्ट का कोर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट. फार्मा इंडस्ट्री का कोर क्या है? पेटेंट एंड लाइसेंसिंग. यूनिलीवर पेप्सी का कोर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, दैट इज देयर कोर. कि आपको मालूम है पेप्सी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, किधर गांव तक पेप्सी जाती है. दैट इज देयर कोर.
ओयो का कोर क्या है? अफोर्डेबल रूम्स, दैट इज देयर कोर। अफोर्डेबल रूम्स मिल रहे हैं तो चल रहा है, दूसरा भले कोई भी आ जाए XYZ, लेकिन ओयो में अफोर्डेबल रूम्स मिल रहा है तो कस्टमर उसके पास ही जाएंगे। अच्छा, आपको कैसे समझ में आएगा कि आपका बिजनेस स्केल हो गया? समझ में भी तो आना चाहिए ना, मेरा बिजनेस स्केल हो गया, मैंने बिजनेस किया, फ्रीलांस किया, स्टार्टअप किया, फिर बिजनेस किया, बिजनेस स्केल किया, स्केल हुआ कि नहीं। इमीडिएट कैश फ्लो आना चाहिए बिजनेस में, रेगुलर कैश फ्लो आना चाहिए, सस्टेनेबल कैश फ्लो आना चाहिए, कैश फ्लो बढ़ना चाहिए आपका। एंड पर्सनल टाइम, यू शुड गिव पर्सनल टाइम टू योर फैमिली, ये भी होना चाहिए। आपका बिजनेस स्केल हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा? यू शुड नो कि आपके बिजनेस में कैश फ्लो कैसे आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, सस्टेनेबल आ रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है कैश फ्लो कि नहीं हो रहा है। ये आप देखेंगे आपके बिजनेस में, तो यू विल गेट टू नो कि योर बिजनेस इज गेटिंग स्केल अप और नो। हाउ टू इंक्रीज योर टर्नओवर। अभी आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए, अपने मुंबई से महाराष्ट्र में चले गए, अब महाराष्ट्र में पूरे इंडिया में चले जाना है। acquire more customer, how to increase your turnover, acquire more customer, more transaction, more frequently customer should buy your product more frequently, loyalty हो जाना चाहिए कस्टमर के साथ। आपका प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दो, आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा। आपके प्रोडक्ट्स बढ़ा दो, आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा। आपका जोग्राफिकल एरिया बढ़ा दो, आप महाराष्ट्र से गोवा में चले जाओ, महाराष्ट्र करते करते गोवा चले जाओ, गुजरात चले जाओ, आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा। अभी आप जा सकते हो। पहले स्टार्टिंग में आपका बिजनेस खड़ा करना है, बड़ा नहीं करना है। अभी आपको बिजनेस बड़ा करना है। लास्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजी फॉर स्पीड अप एंड स्केल, 3T। आपका बिजनेस को अभी लिसन टू मी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम सेइंग। पहले क्या होता था ना, बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाती थी। फिर क्या ट्रेंड आया मालूम है? छोटी छोटी मछली या बड़ी मछली को खा जाती थी। नाउ द टाइम इज फास्ट, जो जाएगा ना फास्ट वाली मछली बड़ी मछली को खा जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के डेट में जो फास्ट जाएगा, जैसे हो गया एग्जांपल स्विगी, कभी आया 2017-18 में आया, 2020 में उसका टर्नओवर देख लो कितना फास्ट चला गया। हेलो गाइस, यस सर, यस समझ में आ रहा है? नाउ Yes, इट्स yes, टाइम, sir. अभी आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए हो। नाउ इट्स टाइम टू गो फास्ट। फास्ट कभी होगा? जब भी आप टेक्नोलॉजी को एक्वायर करेंगे, आपकी टीम को आप ट्रेनिंग देंगे, आपकी टीम बड़ी बनाएंगे, तभी यू विल गो फास्ट। नाउ द टाइम इज कि दोज हु विल गो फास्ट विल एक्वायर, विल बी द बिजनेस लीडर। पहले ऐसे नहीं था। पहले जो बड़ी बड़ी मछलियां थी वो बैठे रहती थी, छोटी मछली को आने ही नहीं देती थी। अब ऐसा नहीं है, छोटी मछलियां भी आती है, आगे जाती है, बढ़ती है, अगर वो फास्ट हो तो। सो यू विल हैव टू बी फास्ट इन योर बिजनेस। कम ऑन गाइस, ये मैं पढ़ता हूँ। मेरे साथ जब मैं खड़ा हो जाता हूँ, मेरे साथ जब मैं खड़ा होता हूँ, तो मैं कयामत के हर तूफान में भी बड़ा होता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। मेरे साथ जब मैं खड़ा होता हूँ, तो मैं कयामत के हर तूफान में भी बड़ा होता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिजनेस में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लोग हो जाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट आई थिंक, हाँ लास्ट पॉइंट है बैरियर। क्या क्या बैरियर आएंगे आपको एंटरप्रेन्योरशिप, और उसका ओवरकम कैसे करेंगे? आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा उसके बारे में। लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, मैंने बोला था आपको पढ़ना है, आपके गोल की तरफ नॉलेज लेनी है, जो आपका गोल है उसको। सो दिस इज द बैरियर, लैक ऑफ मार्केट नॉलेज। आपको मार्केट नॉलेज लेनी है, आपको कुछ साल, हाँ आप जॉब करेंगे, कितना साल जॉब करेंगे वो भी आपको सोचना है। अगर आपको बिजनेस करना है तो कितना साल जॉब करना है? मैक्सिमम 5 ईयर्स जॉब करो। 5 ईयर्स आप जॉब कर रहे हो, जॉब के दौरान आपको कोई भी लोन नहीं लेना है, घर वर नहीं लेना है, घर वर बाद में लेंगे। डोंट मेक लाइबिलिटीज ऑन यू। आप लाइबिलिटीज समझो आ गई ना, अभी 5 साल में आपने समझो आपकी इनकम, आपको जॉब में अच्छी सैलरी मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? अभी आप घर लेंगे, गाड़ी लेंगे। यार मारवाड़ी इंसान हूँ, सही बोल रहा हूँ, आपको कुछ मत लेना।
लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी, बिजनेस में आने में तकलीफ हो जाएगी, जॉब को छोड़ के बिजनेस में आने में तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर लाइबिलिटीज बहुत सारी हो जाएगी। मेरे हिसाब से मैं सारे टीचर्स को ये पॉइंट्स समझ में आ गया होगा कि कुछ समय के बाद लाइबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है, ईएमआई बढ़ जाती है, राइट? आई एम टॉकिंग टू टीचर्स। कुछ टाइम के बाद हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाती है, हम लोग इतना जॉब करते हैं तो हम लोग घर ले लेते हैं, उसकी ईएमआई आ जाती है, कार ले लेते हैं, उसकी ईएमआई आ जाती है, फिर हम बिजनेस करने की सोचते हैं जॉब के बाद, तो हमारी ईएमआई तो चालू है, तो बिजनेस कैसे करेंगे? तो मैक्सिमम अगर किसको बिजनेस करना है 5 साल जॉब करो, उसके बाद बिजनेस कर लेना और लाइबिलिटीज नहीं लेना। लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स, यू गो टू सम इंस्टीट्यूट, आप अपने टेक्निकल स्किल्स को बढ़ा लो, बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी बिजनेस में आजकल बहुत जरूरी होगी। लैक ऑफ कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैक ऑफ कैपिटल। पैसा कहाँ से लाई भाई, पैसा कहाँ से लाए? पैसे के बिना तो बिजनेस ही नहीं होगा। तो ये उसके लिए मेरे को अगर वापस से कभी कॉलेज में बुलाया तो मैं आपको बता दूंगा कि पैसे कहाँ से लाने हैं, उसके लिए बहुत बड़ा टॉपिक है ये, पैसे कहाँ से लाने हैं। अगर शॉर्ट में चाहिए तो मैं आपके पास टाइम है तो बता सकता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है ये। टाइम, प्रेजेंस एंड डिस्ट्रैक्शन, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ओके, अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे कि कुछ फैमिली इश्यूज हो गए तो आप बिजनेस करने में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो मेक श्योर कि फैमिली में भी सब कुछ पीसफुल हो, ताकि आप अपने बिजनेस में डिस्ट्रैक्शन नहीं हो जाए। लीगल कंस्ट्रेंट्स एंड रेगुलेशंस, इसके लिए आपको एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। मैंने भी जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे लीगल कंस्ट्रेंट्स एंड रेगुलेशंस के लिए बहुत प्रॉब्लम आई। तो मेरी कलीग है निमिषा पटेल, अपने कॉलेज के एलुमनाई है, उसने बीफार्म करके एलएलबी किया है, शी विल हेल्प इट आउट। अगर किसको चाहिए हेल्प तो लीगल कंस्ट्रेंट्स एंड रेगुलेशंस में और पेटेंट्स में और आपके प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड प्रोडक्ट बनाने में, ट्रेडमार्क बनाने में, शी विल हेल्प इट आउट। शी हेल्प मी, शी इज़ वेरी नाइस गर्ल, वेरी काइंड गर्ल, शी विल हेल्प इट आउट। आपको हेल्प करेगी उस चीज़ के लिए। सो स्टूडेंट्स, लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आपको बिजनेस करना है ना, तो एक कदम, एक स्टेप तो आपको, एक सिंगल स्टेप तो आपको करना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे मैं बिजनेस कैसे करूं भाई, जो लाखों किलोमीटर चलता है उसको एक स्टेप से ही तो स्टार्ट करना पड़ता है। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। जर्नी ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। तो कदम बढ़ाओ, जिसको बिजनेस करना है कदम बढ़ाओ, यू विल सक्सीड। मेरे कुछ पॉइंट्स आप ले लो, मेरे फ़ोन नंबर ले लो, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आएगा, किसको बिजनेस स्टार्ट करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। स्टेप लेंगे तभी आप आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। सो लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। जर्नी ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। स्टेप को आप लेना पड़ेगा। थैंक यू गाइस। गिरीश जी, बहुत अच्छी इंग्लिश लिखी है, लेकिन मात्रा में थोड़ी मिस्टेक है, तो संभाल लीजिए। हिंदी आई, मतलब मैंने ट्राई किया वो हिंदी में लिखने के लिए। We are from Hindi Pradesh, so we are very strong in Hindi, particularly grammar. पर मतलब हिंदी में अगर प्रोवर्ब्स बोले तो बहुत इफेक्टिव पड़ते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश में नहीं लिया। Yes, वो वेरी इफेक्टिव, भाषा ही इफेक्टिव है। हाँ, ऐसी थोड़ी राष्ट्रभाषा बनी। हाँ, इससे इफेक्ट, स्टूडेंट्स को इफेक्ट आएगा, स्टूडेंट समझेंगे क्या। नहीं, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन थोड़ा सा मात्रा को सुधारनी होगी। हाँ, हिंदी, मराठी वाली हिंदी है ये। अच्छा, हम लोग महाराष्ट्र में ना। हाँ, चढ़ी की मात्रा है। ओके। Students are free to ask their question. They can unmute themselves or put their queries in chat box. Girish, the questions are there in the chat box. Please go ahead. Then please ask questions if you have any. I'll take a photo of it. Screenshot नहीं हो रहा है। या प्लीज, आई एम डन विद माय सेशन। बहुत टाइम ले लिया मैंने मुझे 11 बजे तक ही बोला था, लेकिन मैंने 11:15, क्योंकि मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक था ना। Yes, Girish, thank you very much. The session was definitely enlightening. Now the session is open for question answer session. Yeah, I am open for question. Yeah, any questions. Business में कोई भी questions हो जाए. Okay, please read the questions to Girish. Omkar Dare asked,
How, थोड़ा लाउडर यार, how सुनाई नहीं दे रहा है. how to reach to maximum number of people? हाउ टू रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. मैंने आपको मेरा स्लाइड है कस्टमर एक्विजिशन, उसमें मैंने बताया है आपको कि आप 3 क्वेश्चन है उसके अंदर, वो क्वेश्चंस को आप मंथन कीजिए. देन उसका नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड नेटवर्क. बिल्ड नेटवर्क कीजिए. बिल्ड नेटवर्क करने के लिए इवेंट्स अटेंड कीजिए, स्मॉल टॉक कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग कीजिए आपके कस्टमर एक्वायर करने के लिए. अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा आया है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप आइए, आपका जो भी आप बिजनेस करना चाह रहे हो उनको आप उस पर लाइए, लोगों को वो लिंक के थ्रू आपके वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट पे आएंगे वो कस्टमर्स, ऐसा कस्टमर एक्विजिशन होगा. यस खुशी. Yes, sir. Any other question from any of the participants? And don't leave the meeting. Attendance is remaining. Students, attendance and group photo. 2 things are remaining. चलो यार क्वेश्चन पूछो. मैं होता ना तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता था अभी तक प्रोफेसर से. अमजद अली सर को मालूम है. मैं पूछूं? Can I ask? या डेफिनेटली मैम. वो मतलब आपको बहुत इंटरेस्ट आया है टॉपिक पे. How many crores turnover? मींस हाउ मेनी करोड़ टर्नओवर्स होना चाहिए. हो गया आपका अभी तक? हमारा हाँ जी. वो मैडम मैं आपको पर्सनली बताऊंगा स्टूडेंट्स के सामने. अच्छा ठीक है. Okay. There is one question by Ajink in the chat box. Can LLP offer an IPO? What? Pardon the question? Kushi, please do the needful. Kushi and Nagini. Kushi, louder. Sir, which type of technology required for small scale business? Which type of technology required for small scale business? But what is your business actually? There are lots of technology. But what is your business? वो पहले पता करना पड़ेगा हम लोग को. राइट. अभी आप टेक्नोलॉजी बोलेंगे तो फॉर व्हाट? मार्केटिंग के लिए, रिसोर्सेज के लिए. हाँ, फार्मा कंपनी. फार्मा कंपनी खोलना है. किसको खोलना है? दीपक मिश्रा. दीपक मिश्रा, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन. यस सर, गुड मॉर्निंग. हाय दीपक. यार तेरा चेहरा नहीं दिख रहा मुझे. सर मैं लाइट आ रहा हूँ. सर नहीं तेरा चेहरा देखना है मुझे, जो फार्मा कंपनी खोलनी है ना. Deepak. Yes, very good, Deepak. Yes, ask your question. यस सर. It seems Deepak has some network issue. Deepak, you can WhatsApp me your question. मेरा स्लाइड में मेरा नंबर था. Somebody wants, I can give my number, or you can take from Vandana ma'am. You can WhatsApp me your question. I will definitely answer you whenever I get my time. चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं ना सर वो? हाँ, चेक बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप लोग. Okay? अभी डाल सकते हैं. पर WhatsApp में मैं किधर भी रहूँगा तो इनको आंसर दूंगा फटाफट. So we have 2 more questions. Yes, Kushi. Which was first business you started? Which was first business I started? Yes. This is my first business, I suppose. मतलब मेरा फैमिली बिजनेस तो मेडिकल स्टोर्स, रिटेल चेन्स ऑफ मेडिकल स्टोर्स था ही. बट दिस इज माय फर्स्ट बिजनेस. मतलब ये रिहेबिलिटेशन एड प्रोडक्ट्स का. बट बहुत बार गिरा, फेलियर हुआ बहुत बार. Sir, we have one more question. Just a minute. Sir, suppose my own business provide less income than I expected. How long should I stick with it? Pardon?
Sir, suppose my own business provide less income than I expected. How long should I stick with it? Yes, The very good question. question, Very good question. the question was asked by Lohar Prince. It was written in chat box. If your business, देखो दो चीज होती है. If your business का टर्नओवर कम हो रहा है और मार्जिन्स भी कम हो रही है, दैट मीन्स यू हैव टू स्विच योर बिजनेस, चेंज योर बिजनेस. अगर आपका बिजनेस में टर्नओवर भी कम हो रहा है, मार्जिन्स भी कम हो रही है, देन स्विच योर बिजनेस और डू सम इनोवेटिव वर्क. टेक माय वर्ड्स, अगर बिजनेस में आपका टर्नओवर मतलब आपका सेल कम हो रहा है और मार्जिन भी कम हो रही है, दिस मीन्स समवेयर इज समथिंग इज रॉन्ग विद इन योर बिजनेस. चेंज योर बिजनेस. I think we are done with the question answer session. Omkar has requested Girish ji to provide the PPT. So that is your call. You can take the call. Omkar Dere has written in the chat box that please provide us with Omkar, the you take PPT. my number and give me your mail ID. I will mail you my PPT. You can take Mr. Girish number from me. I'll share with you. Yes, yes. Any of the students can. OCB का कोई भी स्टूडेंट्स मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकता है फॉर एनीथिंग. आई एम अवेलेबल. Very nice, Okay, sir. very nice and appreciable gesture, Mr. Girish. Good. So we'll begin with formal vote of thanks. Yes, Over yes. to you, Khushi and Nadreen. Feedback and attendance is still remaining. Don't leave meeting. Next few more minutes. Since there are no more doubts, I would request everyone to kindly fill the feedback form. Link is given in the chat box. And over to you, Khushi. It gives me an immense pleasure to मैडम draft. फोटो सेशन हो गया क्या वंदना मैडम? No, madam. No, madam. It's remaining. Let us propose vote of thanks and then we'll have a group photo. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all the dignitaries assembled here. I would like to thank our chief guest, Mr. Grish Trivedi sir, who honored this webinar with his knowledge. I would like to thank our management and our beloved principal, Sudha Rathod ma'am, for being our backbone and motivational support. Thanks to our alumni who has taken our time who has taken out time to join today's session. I would like to thank all the members of organizing committee, faculty members, and all the students present over here for making this webinar a grand success. Thank you one and all. Have a great day. Thank you, Mr. Girish, for taking out your valuable time. Thank you, one and My all. pleasure, ma'am. Now Thank you very much. we'll stay in touch with you. Our student will connect to you if require any guidance from your side. Okay, no We'll problem. have a It was group really photo. very nice presentation and talk, Mr. Girish. Invaluable. So, I suppose this is recording. Can I get this recording? Sure. I'll Yes, share sir. the link with you. Please. Please keep the camera on. We'll take a group. Student placement and student members, please give some good pictures. I am unable to click from my side. You please click some good pictures. Students, switch on the camera fast. I will take photographs. Swarnali madam, Piyusha madam, also listed. You can also click few pictures. Then just let us know. हाँ, स्वर्णाली मैडम तो आज एकदम बंगाली दिख रही है, फुल बंगाली. Beautiful. I suppose we are done with the photograph. Yes. Those who are taken Yeah. have to write. Thank you so much, madam. Thank you, Continue principal with madam. such
Yes. and get students be benefited by the Yes, seniors. madam. Yes, Yeah, yes. I Thank want you to. one and all. Wish you all a happy and safe Diwali. Yes, Girish, please. Tell me. या मैं प्रिंसिपल मैम से पूछना चाहता हूँ, मैडम आपको सेशन कैसे लगा? हाउ वाज द सेशन एक्चुअली? से मतलब वेरी नाइस truly- सर, ऐसा कभी सेशन इतना टू द पॉइंट और के जो आपने बताया है अनुभव, वो इतना सिंपल नहीं है और किसी कोई ऐसे इजीली देता नहीं. This is because of your belongingness to the college, authority you have felt, I and would your like to hear experience. I would like to hear from some of the students जिसको ये सेशन अच्छा लगा. मतलब बिकॉज वो अगर बिजनेस करे तो आई विल डेफिनेटली हेल्प हिम आउट कि कैसे अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आए तो स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि उसको सेशन कैसा लगा जिसको He बिजनेस has करना है. shared as well. Students are required to compulsory fill that feedback form. Okay. And meanwhile, you can give your feedback in chat box as well. Feedback is for our documentation purpose. Okay. Okay. काफी थैंक यू आ रहे हैं सर त्रिवेदी जी. हाँ जी. काफी थैंक्स आ रहे हैं. Students have enjoyed and maybe on the way to get entrepreneurship is like you. And I have also Our started teachers, getting. Dr. Vanita is also very much interested in being the entrepreneur. And I started getting message from the student asking Mr. Girish number. So that clearly indicates the session was definitely good, informative. No problem. Whenever I will get time, I will definitely answer their questions. I would like to share one thing with you, Mr. Girish. Yes. Since I was not in touch with you earlier, so I asked Principal Sir that how is Mr. Girish? So Principal Sir gave such a positive, strong feedback. Madam said, no, he is a very good person. I'm just that he was GS at that time. Perfect, madam. You go ahead. Don't give even a small single thought. And I must admit that they both are 100% right. I also observed the same thing. You have really done justice to the topic. And we can see from the PPT, you have put a lot of effort and input in preparing the PPT itself. A simple PPT takes 2 hours time for us to prepare. And you have compiled it off the way. Definitely, you have given. No, PPT was very simple. मैंने उसमें fabrications नहीं किया है. मैंने content उसमें अच्छा डाला था. Yes. So on behalf of ODP, we are really thankful to you for this kind gesture. I spoke to him only once and understood that what kind of. So I gave a background about you to Dr. Vandana that get him at the earliest. Yes. It was a very nice session. It was a very. Thank you. Thank you. Vanita madam is also one of the entrepreneurs. Very Yes. good. Actually trying to become an entrepreneur. Oh. So it was a very nice session, and we would like to model. At an early age, you have gone to this entrepreneurship, which we like elderly not able to get the complete. We can't dare to do it. So I got the daring from you. I got the message from you that if you try, things are automatically work out. Definitely. So, and the examples which you gave were really very good, and it was a very active session, and I'm sure students also have really enjoyed the session. Thank you so much. मैंने लास्ट में बोला लाखों किलोमीटर की शुरुआत एक कदम से ही शुरू होती है. All the proverbs मेरे दिमाग में और मेरे माइंड में मेरे जुबान पे रहते हैं हमेशा. Do you have any business background, Girish? Yes, ma'am. Do you have a business? Yeah, I had a business background. मेरा फार्मा में हम लोग 30 years से है, बट मेरा फैमिली बिजनेस नहीं ज्वाइन किया था. फिर मैंने मेरा फैमिली बिजनेस छोड़ दिया, मेरा अपना बिजनेस स्टार्ट किया बिकॉज मुझे एनाटॉमी बहुत अच्छा लगा था. So this is the reason that's the reason I got into this business. It's anatomy के पार्ट है बिजनेस में भी. जिधर आपको लगता है you will एंकल में लगता है या कोई भी बोन्स में लगता है तो उसके लिए प्रोडक्ट यूज होते हैं. सो दैट्स द रीजन आई गॉट इनटू दिस बिजनेस.
और बहुत सारे रीजन है, अगर आप manufacturing. कभी मैं आऊंगा मिलने तो आप बताऊंगा क्यों आया मैं ये बिजनेस में, व्हाई आई चॉइस दिस सेगमेंट और दिस पर्टिकुलर बिजनेस. Your own manufacturing or it is a sale? No, Manufacturing is no. We our company is a purely marketing company. We okay. make the product job work पे बनवा के लेते हैं. Then we do the marketing. But our marketing team is very strong. It's a fly high model. हम लोग को पैसा या टाइम या एनर्जी प्रोडक्ट बनाने में यूज नहीं करना है, वही टाइम पैसा एनर्जी प्रोडक्ट मार्केट करने में यूज करना है. Correct. फ्लाई हाई मॉडल. You have appliances like for knee joints, etc. Pardon? You have things for knee joints, etc. Problem in knee joints. I have actually